Dear students, today we will discuss very important lecture for competition as well as बच्चों BSc students. Dear students, we have already started the chapter enzymes, and in today's lecture we will discuss chemical nature of enzymes. Dear students, chemical nature and some very important properties for all competitive एग्जाम्स एंड BSc स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, जितने भी हमने नोट्स ये बनाए हैं उन सब की PDF फाइल, वीडियो लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए. सभी बच्चे अच्छी तरह से बेटा अपने नोट्स बनाए. वीडियो लेक्चर के थ्रू प्रॉपरली बच्चों आपको गो थ्रू होना है. तो क्या कुछ बता रहे हैं? टुडे वी विल डिस्कस केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. BSc स्टूडेंट्स बी केयरफुल. मैं कॉम्पिटिशन नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों इंपॉर्टेंट. क्या कहा? केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. तो केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड इट वाज गिवन बाय समनर इन 1926. क्या कहा हमने बेटा? एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दे एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल टर्शियरी फॉर्म. हमने कहा दे एग्जिस्ट इन टर्शियरी फॉर्म. लास्ट लेक्चर बेटे पीछे हमने करवाए structures of proteins, and proteins are found in primary, secondary, tertiary and quaternary. But strictly be careful, need students, the enzymes they exist in 3-dimensional tertiary forms only. That's why बच्चों all enzymes are proteins, but not all proteins are not enzymes, because proteins के tertiary form all enzymes, primary structure, secondary structure and quaternary structures of proteins are not enzymes. हमने कहा strictly proteins का tertiary structure बच्चों 3-dimensional structure. एक्टिव साइट्स बनेगी, स्पेसिफिक बॉन्ड्स एस्टैब्लिश होंगे, वो बच्चों हमने प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके. ठीक है, क्या कुछ डिस्कस करें हम? केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. केमिकली दीज आर प्रोटीन सब्सटेंसेस, ग्लोबुलर फॉर्म्स, 3-dimensional structure, tertiary structures of proteins, and it was given by Sumner 1926. Some exceptions are there. Dear students, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए अब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सम एक्सेप्शंस आर देयर. हमने कहा कि ऑल enzymes are proteins, but some exceptions in which the enzymes are RNA substances. देखते हैं बच्चों, ये देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट. नीट स्टूडेंट्स ribozymes. These were discovered by Sack et al. 1981. हमने कहा बच्चों ribozymes, these are RNA enzymes discovered by Sack et al. Et al means उसके साथ जो वर्कर्स, कोवर्कर्स, तो नाम देंगे बच्चों Sack et al. 1981. This ribozyme, it is an RNA enzyme. कहा बच्चों इसके इन्वॉल्वमेंट? नीट स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों. इन द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स. बच्चों बहुत जल्दी हम जेनेटिक्स के यूनिट शुरू करेंगे. सभी बच्चे अलग अलग से बेटे नोटबुक अलग अलग से बनाएं. सेल बायोलॉजी की अलग से यूनिट बनाएं, बायोमोलिक्यूल्स की अलग से बनाएं बेटे. जेनेटिक्स शुरू करेंगे, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे. बी केयरफुल. तो याद रहे बच्चों हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे DNA मॉलिक्यूल, एंड इन दैट DNA मॉलिक्यूल द एंटायर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट. सम फंक्शनल ग्रुप्स, एक्सोन्स, and some non-functional groups are introns. At the time of RNA synthesis transcription, we remove the introns. These are non-functional groups. क्या कहा बच्चों? DNA molecule की बात कर रहे हैं. In that DNA, at the time of RNA formation, that is transcription, the information that exists, some functional group, exons, some non-functional groups are introns. Non-functional groups को रिमूव करना है, इंट्रोन्स को रिमूव करना है. The specific enzymes, ribozymes are involved. These are RNA enzymes. These are some exceptions.
Another very important example for NEET students. This example is ribonuclease P. हमने कहा बच्चों राइबोन्यूक्लियस P DNA से RNA बनेगा. That process is transcription. और जो RNA बनेगा बच्चों, that RNA, it is a mixture of all types of RNAs. That is HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. एक एक पॉइंट नोट करें बच्चों, नीट स्टूडेंट्स, एम स्टूडेंट्स. HNRNA, heterogeneous nuclear RNA. वहां से बच्चों हमें सेपरेट करना, फ्रॉम दैट HNRNA we have to separate tRNA. For that purpose, a specific enzyme is required, which is a RNA enzyme, that is ribonuclease P. आज डिस्कस करें बच्चों हम केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स. केमिकली देख रहे बच्चों, दीज आर प्रोटीन सब्सटेंसेस. द एंजाइम्स स्पेसिफिक 3-dimensional टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन्स के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंजाइम्स. On the basis of their chemistry, chemical nature के हिसाब से बच्चों enzymes are divided into 2 groups में enzyme को divide कर रहे हैं. Simple enzymes means pure proteinous enzymes. Simple enzymes are made up of one or more polypeptide chains of amino acids. If one polypeptide chain is present, then these are monomeric proteins. If few polypeptide chains, then these are oligomeric, and several polypeptide chains are involved in enzymes, then these are polymeric. क्या कहा बच्चों? Simple enzymes are pure proteinous enzymes without any मिलावट. क्या कहा हमने? These are strictly made up of one or more polypeptide chains of amino acids, and these amino acids are interlinked by peptide bonds. ठीक है बच्चों. बट सेकेंड टाइप वेरी इंपॉर्टेंट. नीट स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट, बी केयरफुल. सेकेंड टाइप इट इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम. हमने कहा बच्चों दिस आर कंपाउंड प्रोटीनस एंजाइम्स. कॉन्जुगेटेड, मिलावट इज देयर, सम मिक्सचर इज देयर, सम नॉन प्रोटीन पार्ट इज देयर. देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं बच्चों स्ट्रक्चर से. एंजाइम कॉन्जुगेटेड डिस्कस कर रहे हैं बच्चों. In this conjugated, ये देख रहे बच्चों प्रोटीन पार्ट. बी केयरफुल ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी प्लस कॉम्पिटिशन. एपो एंजाइम, क्या काम ने? प्रोटीन्स पार्ट इज एपो एंजाइम, एंड दिस नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ ए कॉन्जुगेटेड एंजाइम, इट इज ए कोफैक्टर. दिस एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर collectively constitute a complete enzyme, that is holo enzyme. क्या काम ने बेटे? एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट. क्या काम ने? कोफैक्टर, दैट इज ए नॉन प्रोटीन पार्ट. एंड बोथ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट मीन्स एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट होलो एंजाइम. होलो मीन्स बच्चों कंप्लीट एंजाइम, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. ये देख रहे बच्चे काफी इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स फॉर ऑल एग्जाम्स का हमने. पॉइंट नंबर फर्स्ट, एपो एंजाइम. एपो एंजाइम दीज आर प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम. एंजाइम का जो देख रहे बच्चों ये प्रोटीन पार्ट, दैट इज एपो एंजाइम. कोफैक्टर, दिस नॉन प्रोटीन पार्ट इज कोफैक्टर. अब मैं कोफैक्टर को क्लासिफाई कर रहा हूं. अब कंपटीशन वाले बच्चे एक पॉइंट में स्ट्रेस देंगे. क्या कहने? कोफैक्टर, दीज कोफैक्टर्स मे बी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फिर क्लासिफाई करें कोफैक्टर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. देन बच्चों दीज आर activators. In activators, these are metallic ions like calcium, manganese, magnesium, iron, zinc. These are activators. And organic substances, these are further classified into 2 groups. One is coenzyme. Co-enzymes को help कर रहे बच्चों, associate करें उनके साथ. These are non-proteinous organic substances. एक्टिवेटर में इनऑर्गेनिक काम नहीं. अब ऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे हैं. एंड ऑर्गेनिक वालों के भी 2 ग्रुप बना रहे बच्चों. फर्स्ट ऑफ ऑल कोएंजाइम्स. क्या काम ने? दीज आर कोएंजाइम्स, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच एसोसिएट करेंगे एंजाइम के साथ लूजली, मीन्स दे कैन बी इजीली सेपरेटेड.
But prosthetic group, that is a non-protein organic substance which firmly, tightly associate करेगा बच्चों एपो एंजाइम के साथ, एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ. Means these prosthetic groups cannot be separated. 2 points very important. Organic substance डिस्कस कर रहे हैं कोफैक्टर का, मे बी कोएंजाइम लूजली एसोसिएट करेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप फर्मली एसोसिएट करेंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड. एग्जाम्पल देखें तो बच्चों ये देख रहे हैं कोएंजाइम, दीज आर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. नीड स्टूडेंट्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लाइक NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, these are vitamin B complex. This one is FAD, flavine adenine dinucleotide, and another vitamin B complex that is FMN, flavine mononucleotides. मैं जल्दी बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स, DNA, RNA मॉलिक्यूल्स के साथ सारा डिस्कस करेंगे. प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या काम ने, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप एपो एंजाइम के साथ एसोसिएट कर रहा है, टाइटली फर्मली एसोसिएट करेगा, कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड. एग्जाम्पल देखें तो बच्चों हीम ग्रुप, आयरन कंटेनिंग नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक ग्रुप. कहाँ इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, साइटोक्रोम्स. रेस्पिरेटरी चैप्टर के साथ बेटा डिस्कस करेंगे साइटोक्रोम्स. होलो एंजाइम, हमने कहा बच्चों होलो एंजाइम मीन्स कंप्लीट एंजाइम. दिस एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन कोफैक्टर collectively constitute होलो एंजाइम. एंड वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों 2 points. सबस्ट्रेट जहां एंजाइम मॉलिक्यूल एक्ट करेगा, जिसको कैटेलाइज करेगा, जिस भी सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट्स, दैट इज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. जाइमोजन, हमने कहा बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फाइनल एग्जाम, जाइमोजन. और दीज आर प्रो एंजाइम्स, एंजाइम्स के साथ प्रो लगाया हमने बच्चों, मीन्स these are inactive forms of enzymes. Several enzymes before joining their cofactor they remain inactive. These inactive enzymes are zymogens, proenzymes. ठीक है बच्चों, तो काफी इंपॉर्टेंट बेटे लेक्चर्स हम कवर कर रहे हैं. एंजाइम्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस more properties of enzymes. Thank you.